Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to talk about depression. There are various types of depression. So let us talk about bipolar depression, maniac depression and many other types. But before that, I would love to introduce you with the young counselor Kavita Chandak. Thank you. And as you know that he is young, he can relate with youth and their mental very well. So today we will discuss about depression together, how we can help the patients with medicine as well as counseling. Yes. So, doctor, let's start with I have patients in several ages, right? I have a patient of 16 years, I have a patient of 74 years. So, I wanted to ask you about what's the exact age according to you which is more prominent to depression, especially after coronavirus? Okay, previously we used to notice depression hardly more than 10% above the age of 25 years. But now because of this coronavirus, the scenario is totally changed. Now we are getting senior age patients also suffering from depression. What we call it as a post-COVID depression. But the original age of depression is just between 12 to 25 years. Okay. It's a common age. And there are reasons behind it. Like, see, as you know, we have two brains. One is logical and second one is emotional. And our logical brain is bigger in size as compared to the emotional brain. But scenario is different. Our lives are ruled by the emotional brain. We are the combination of logical and emotional brain, as we see in the dance. But in life, when we take decision, the emotional brains become dominant. So what happens, there are lot of neuroconnections, like 50 to 100 lakh crore neuroconnections between these two brains. And brain has a very beautiful magical ability. Whenever it needs, it can expand or it can contract the neurons of the brain, which is known as neuroplasticity. So there is a great connection between logical and emotional brain. So there are three cables which connect these two brain, emotional and logical. Right. And these three cables are, one is serotonin, second is dopamine and third is noradrenaline. You know what? Serotonin is responsible behind all types of joy and happiness. And dopamine is basically responsible behind the pleasure in food and sex. And noradrenaline is involved in the energy and sleep. Right. So whenever any connection or any cable do not work in a good way or in a proper way and the ratio gets disturbed, so we have some mental illnesses. And depression is one out of that. Okay. And what happens when the child is in the womb of the mother, there is only 10% development of brain is there, which sex hormone should be developed in the body of fetus according to his sex, because there is little difference between men and women brain. Being counselor, you must be knowing about it. Do you know about it? Yes, I know that female brain, they have a capacity that they can work, as you said, that we have two brains, right? Right. Logical and emotional. Yes. So female brain are gifted with the ability that they can work both of the brains with a very good balance. Yes, multitasking. Yeah. Unlike men who can use one brain at a time. Right. So that's the major difference. I think so. This is also the reason behind why 70% of males are always, suicidal if they Yes. fall in depression. Yes. But women have a different response. Would you like to share Yes. your views on this? Yeah, it's because of, see, men brain is little bigger than female brain. But female has more connection as compared to men, and they are tend to talk. They talk with others. They have good connections. But on the contrary, what happens? Male usually do not talk. They suppress everything inside them. They talk with themselves only. But female talk with others, and so that in this way they can share their emotions. And that's why you are correct that we have lot of suicidal rate as compared to women. We have more in male. Like recently our Bollywood superstar, one superstar has committed suicide, and it is said that it is because of depression. So Well, that's not a confirmed news right now. So but it is said that as per our news, whatever I'm hearing from the news channels,
So it is just an example that male are more prone to commit the suicide as compared to female because of depression. Okay, anything else you want to ask? Yeah, I wanted to ask you, like, as we know that many patients come to you also that we are feeling depressed, Yeah. and we are feeling sad, but they don't understand that there is a difference between being depressed Yes. and in depression. Yes. How can one tell that they are in depression? How can we help if we identify कि कोई depression में है हमारे family में, but they don't want to come out Yeah. and speak? Okay. तो हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताएंगे अगर आप थोड़ा सा इस बारे में। या इसके थोड़े अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे लो मूडनेस हो गया है, उसके बाद में एनर्जी कम हो जाता है, पेशेंट बिकम होपलेस एंड हेल्पलेस, उनको लगता है कि मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा, एक अजीब टाइप का इंडिफरेंस डेवलप हो जाता है, जैसे खाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कपड़े पहनने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बाहर निकलने का, घूमने का, हर चीज में का इंटरेस्ट लैक हो जाता है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ही चीज कहना चाहूंगी पेरेंट्स से भी कि वो भी अपने बच्चों को ऑब्जर्व करे सही तरीके से। क्या होता है, गर्ल्स यूजुअली रो के बता देते हैं, लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, जब बच्चा बड़ा होता है, अगर वो मेल चाइल्ड है और वो किसी भी चीज को लेकर रोता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो हम उसको बचपन से क्या बोलते हैं, अरे क्या लड़की की तरह रो रहा है। मतलब हमने बच्चों के दिमाग में डाल दिया है, मेल के दिमाग में, कि तुमको रोना नहीं चाहिए, बिकॉज इट डजेंट गो विथ योर इमेज, योर मैस्कुलिन इमेज, लाइक मैचो इमेज आपका होना चाहिए। बट ये गलत है कहीं तो भी, बिकॉज उससे क्या होता है, लड़के अंदर ही अंदर सप्रेस होते हैं। प्रॉब्लम तो दोनों को सर की होती है। एज आई टोल्ड यू कि मेन एज ग्रुप जो है वो 12 से 25 का है। अब वो क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जब आप प्यूबर्टी में आते हो 13 के एज में, तो आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आपका इमोशनल ब्रेन का आपकी बॉडी पे ज्यादा कमांड आने लगता है, और हर छोटी बड़ी चीज को आप थोड़े से हाइटेंड सेंस के साथ, हाइपर सेंसिटिविटी के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो इस उम्र में जो भी चीज होती, फिर चाहे वो आपका बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ हो सकता है स्कूल में, जैसे बुलिंग हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, किसी किस्म का अब्यूज हो सकता है, या आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा स्मोकिंग और नशे की आदत होती है, तो बच्चे वो एक शौक के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए करके देखते हैं, और बाद में वो खुद ही उसके गिल्ट में चले जाते हैं। ड्रग्स यू मीन? यस। तो ये जब चीजें होती है और बच्चा अपने पेरेंट्स से बोल नहीं पाता है। अब लड़कियां रहती तो रोक के बता देती है, बट लड़कों के लिए स्पेशली पेरेंट्स ने ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि कहीं आपका बच्चा बार बार फटीग तो नहीं फील कर रहा, उसको जनरल मैलेज तो नहीं हो रहा, लिथार्जिक तो नहीं हो रहा, लेजी तो नहीं हो रहा है, हर चीज से विड्रॉल तो नहीं हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक डिप्रेस्ड फील कर रहा है, पढ़ाई में लैक हो रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, जो बच्चा अभी तक अच्छे से मार्क अचीव कर रहा था, सडन वो चेंज हो रहा है, तो दिस इज द साइन, ये अलार्मिंग चीज है कि आप तुरंत अपने बच्चे से या तो खुद बात करें, या फिर उससे काउंसलर के पास ले जाए, या अपने डॉक्टर के पास ले जाए। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और बचपन से अपने बच्चों को ये मत सिखाइए, हम उनको डिफरेंस सिखाते कि आप लड़का हो या आप लड़की हो, आपने नहीं रोना है, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स लड़के में भी उतनी होती है जितने लड़की में, तो वो अगर दुखी फील करता है तो उसने भी वो चीज को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। हमारे सोसाइटी में एक जो होता है कि स्पेशली इंडियन सोसाइटी, कि आप काउंसलर के पास में जा रहे हो या फिर एक थेरेपिस्ट के पास में जा रहे हो, तो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, जो मैंने सुना है कई लोगों से, कि हम आज तक इसलिए नहीं आए क्योंकि फिर हम पागल नहीं बुलवाना चाहते थे अपने आप को, कि अगर आप काउंसलर के पास में जा रहे हो तो आपको एक पागल का या फिर ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है, ये सब जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इट्स ओके, 2020 इज एन ईयर कि आप मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप नहीं लेंगे ना तो फिर आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एंड अभी सोसाइटी का अच्छा वक्त है कि आप समझ जाए कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ जोक, इट्स ओके इफ़ यू कम आउट, यू स्पीक टू पीपल, कोई भी, मे बी नॉट गोइंग टू अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर, आप घर में ही अपने मॉम या डैड को अप्रोच कीजिए, या फिर अपने सिबलिंग्स को अप्रोच कीजिए, या फ्रेंड्स को बताइए। अंदर ही अंदर अगर आप घुटते रहेंगे तो sadness या feeling depressed will be converted into depression in no time. So change that, and if you feel that you are depressed more than 2 weeks, go out and speak out. It's very necessary. अगर ये सही समय पे अप्रोच नहीं होते किसी को भी तो सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होता है। आपको पता है होम्योपैथी में ना अलग अलग चीज के बहुत सारे रेमेडी होते हैं। जैसे हम लोगों को एक फिल्टर लेके चलने की आदत होती है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अभी पोस्ट कोविड डिप्रेशन बहुत डेवलप हो रहा है, ये सीनियर एज में भी दिख रहा है,
उसके दो रीजन है। दिन भर न्यूज चैनल में आप वही निगेटिव न्यूज सुनते हैं कि इतने पेशेंट बढ़ गए और इतनी डेथ रेट हो गई। Now, coronavirus figures exceeded 18 lakhs in the country. Now, the total positive cases till date is 18 lakh 3,695. The recovered has also increased to 11 lakh 86,203 cases. If you look at the number of deaths so far, it's 38,135. 771 people have died in the last 24 hours. तो हम लोग दिन भर वो सोचते हैं और हमारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं अंदर से डरते हैं। दूसरी चीज क्या हो गई कि हमारे जो यूथ है वो अपने आप में बिजी है, क्योंकि पूरा टाइम आपका इंटरनेट में जा रहा है, गेम खेलने में जा रहा है, अल्टीमेटली खुद के साथ जा रहा है। और जो मिडिल एज के लोग हैं, जैसे हम लोगों के तरह, या तो आइदर हम वर्किंग कर रहे हैं या हम वेबिनार ले रहे हैं या कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में बिजी हो गए। तो एक घर में रहने के बाद में भी कम्युनिकेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ऑल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होना चाहिए डिप्रेशन का, वो घर के घर में होना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। दूसरा, मेरे पास ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं, जैसे हम तो बहुत फिल्टर लगाते हैं, तो अभी एक पर्टिकुलर रूब्रिक हम लेते हैं, सिम्टम depression because of the fear of disease, particular disease, like today in present scenario it is corona, so we have very beautiful remedy lilium tick for this. If there is depression because of just fear, किसी भी टाइप का डर हो सकता है, अरे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो जाने की पहले ही पेशेंट डर की वजह से कई बार डिप्रेशन में लैंड हो जाता है। देन वी हैव डिफरेंट रेमेडीज लाइक सिमिसिफ योगा एंड ऑरम्योर। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं प्रेगनेंसी में डिप्रेशन डेवलप होता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स नेचुरली बदलते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती है, लेकिन डिप्रेशन भी उसके साथ में आता है। इफ देयर इज डिप्रेशन एसोसिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट एनी रीजन, जहाँ पेशेंट को कोई रीजन नहीं मिल रहा, देन वी हैव डिफरेंट रेमेडीज लाइक वी हैव प्लाटिना, वी हैव पल्सेटिला, एंड समटाइम्स वी सी दैट देयर आर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब प्योर पेरेल डिप्रेशन कहते हैं इसे, यानी डिलीवरी होगी, बच्चा डिलीवर हो गया, मदर लैक्टेटिंग फेज में, और वो सडनली डिप्रेशन में लैंड हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास अलग रेमेडी। जैसे आप तो काउंसलर है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन में रहते हैं। यस, पीटीएसडी। यस, तो आप इसको कैसे डील करते हैं? पीटीएसडी इज बेसिकली एंग्जाइटी, एंड काउंसलर्स के पास में कई बार ऐसे केसेस आते हैं जो ऑलरेडी एक मॉडर्न मेडिसिन ले चुके रहते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज स्लीपिंग पिल्स। अगर आप पोस्ट ट्रॉमेटिक में जा रहे हो तो आप बात करोगे किसी मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर से, तो वो आपको एक ही चीज सजेस्ट करेगा, स्लीपिंग पिल्स या फिर और कोई मेंटल मेडिसिन। ठीक है, इससे आपका जो डिजीज होता भी नहीं है, जो सिर्फ एक बात करने से ठीक हो सकता था, जो समझाने से ठीक हो सकता था, स्पेशली अर्ली एजेस में होता है। आई हैव अ केस जो अभी 13 साल की बच्ची है, ठीक है, एंड शी इज इन ट्रॉमा बिकॉज घर में किसी की डेथ हो गई, एंड अब शी हैव अ फियर ऑफ डेथ। ओके, अब ये बात करके भी ठीक किया जा सकता था, बट मॉडर्न मेडिसिन ने उसको स्लीपिंग पिल्स सजेस्ट कर दी ट्रॉमा रिलीफ करने के लिए, एंड अब नाउ शी हैज एडिक्शन टू पिल्स, तो स्लीपिंग पिल्स से। सो अगर आपको पीटीएसडी है तो आप अगेन आके बात कीजिए, वो उससे रिलीफ हो जाता है उससे। यू डोंट हैव टू टेक पिल्स फॉर दैट पर्टिकुलरली। दूसरी भी कई चीज़ें हैं जो साइड इफेक्ट्स नहीं देती हैं, सो मे बी ट्राई दैट। या यू आर करेक्ट, लेकिन क्या होता है जैसे होम्योपैथी में ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हम लोग सबसे पहले उसके स्लीपिंग पिल्स को या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को टैपर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार डिप्रेशन का सही जो पिक्चर है वो बिकॉज ऑफ मेडिसिन कहीं तो भी पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक के जब पेशेंट किसी भी ड्रग का कंजम्पशन करता है तो उस ड्रग के पर्टिकुलर इफेक्ट और साइड इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी में दिखते हैं। सो यू डू नॉट गेट द प्योर पेशेंट, यू गेट एन कंटेमिनेटेड पिक्चर ओवर देयर। तो आपको वो ड्रग के सिम्टम्स को और डिजीज के सिम्टम को अलग अलग करना है। फॉर दैट यू नीड टू टैपर द मेडिसिन। यूजुअली व्हाट हैपेंस, प्रीवियसली वन पेशेंट विजिटेड मी और उसका क्या किया, उसके पुराने डॉक्टर ने सडन उसका मेडिसिन बंद कर दिया और शी लैंडेड इन विड्रॉल सिम्टम्स। यस, तो अब आप पेशेंट के रियल पिक्चर को डील करेंगे, उसके ऑलरेडी ड्रग के साइड इफेक्ट्स को डील करेंगे, उसका जो रेजिस्टेंट उसके ड्रग के वजह से डेवलप हुआ उसको डील करेंगे, या उसके विड्रॉल सिम्टम को डील करेंगे। सो इट इज रियली डिफिकल्ट। सो माय सजेशन टू ऑल पेशेंट कि अगर आपको अपना मेडिसिन कोई भी किस्म का बंद करना है तो या तो टैपरिंग मेथड से बंद करेंगे, बट पैरेलली यू नीड समथिंग टू सपोर्ट यू। जैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन साथ में देते हैं जो पैरेलली बहुत ही अच्छा कमांड माइंड और बॉडी पे ले लेता है, एंड ग्रेजुअली देन वी टैपर अदर मेडिसिन। लाइक आई हैड अ केस ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन। आपको पता है बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है?
उसी को हम मैनिक डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट एक फेज होता है बहुत ही चेयरफुल एक्सेंट्रिक रहता है, हर काम में इतना इंटरेस्ट है कि वो 2 दिन का काम 2 घंटे में कर लेता है, और सडन उसका एक फेज चेंज होकर वो सैडनेस में लाइफ ऑन ब्लैक एंड व्हाइट स्केल, यस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब ये फेज कैसे है, कभी 2 दिन चेयरफुलनेस है तो 2 दिन सैडनेस है, कभी 2 मंथ्स चेयरफुलनेस है तो 2 मंथ्स सैडनेस है, मतलब इसमें कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, बट उसके मेंटल स्टेटस जो है वो बदलता है। और बाइपोलर डिप्रेशन की केसेस अभी हमारे लाइफ में, हमारी इस प्रेजेंट इरा में बहुत ज़्यादा मिल रही, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग न्यूरोसिस, साइकोसिस एंड अवर न्यू लाइफस्टाइल, हॉच-पॉच लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। तो हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि इमीडिएट विड्रॉ मत कीजिए, गो विथ द टैपरिंग मेथड, वी विल हेल्प यू विथ होम्योपैथी रेमेडी, एंड दिस इज द करेक्ट वे कि आप एंटी डिप्रेसेंट को बंद कीजिए और ग्रेजुअली नेचुरल पैथीज पे शिफ्ट होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज होना चाहिए, अच्छा डाइट होना चाहिए, और साथ में एम्पैथी मिलना बहुत जरूरी है, उसमें आपके काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो हम पेशेंट को जब भी डील करते हैं साइकेट्रिक के मेडिसिन के साथ साथ में उनको काउंसलिंग सजेस्ट करते हो। करेक्ट, राइट। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, बिकॉज अगर आप देखेंगे, आप काउंसलर के पास में नहीं भी आते हैं तो कई बार आप मोम के पास में चले जाते हैं, डैड के पास में चले जाते हैं, जिससे भी आप अटैच फील करते हो, लेकिन कई बार ये होता है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो बिकॉज यू थिंक इट्स जस्ट अ फेज। जैसे आपने बोला बाइपोलर में आप 2 दिन खुश हो और आप सडन 2 दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपकी बॉडी एक दिन लेथार्जिक है और अगले दिन आप उठ के जिम कर रहे हो। सो कई बार मैंने देखा है कि लोग बात नहीं करते, कई साल तक के उसी में रहते हैं, एंड उनको लगता है कि ये फेज है, मेरी लाइफ ऐसी है। So it doesn't work like that, buddy. You have to come out, you have to speak. So counseling is very important when you are in depression, and also is medicines. Depression is one of the mental illnesses जो आप सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से भी ठीक नहीं कर सकते. You need certain medications, but don't go for sleeping pills. है ना मैम? Yes, correct. And one more thing here, I would like to add that every year 8 million people are dying because of mental illnesses. Not only depression, सब्सटेंस एब्यूज इज देयर, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग साल में 8 मिलियन के ऊपर में लोग मरते हैं। तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, उसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपके डॉक्टर्स है, हम लोग हैं ही आपके लिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको खुद को ओपन अप होना है। देखिए, सबसे पहले आपके काउंसलर और आपके डॉक्टर जो है ना, वो आपके पेरेंट्स है, तो घर में जो भी चीज़ है पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही में एक चीज़ पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए। अगर हम बच्चों पे ट्रस्ट करेंगे तो बच्चा आके हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा, क्योंकि बदले में वो भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस फील करेगा। अगर हम बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो वो झूठ बोलेंगे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, और इसी तरीके से बीमारियां बढ़ते जाएंगी। तो हमें एक सोसाइटी सिर्फ कोरोना से या वायरस से क्लीन नहीं करनी है। ये तो एक ऐसा पैंडेमिक है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। एक कम्युनिकेबल पैंडेमिक है जो आपको दिख रहा है, लेकिन एक हमारे पास में और नॉन कम्युनिकेबल पैंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है, वो है मेंटल इलनेसेस का, जिसके साथ में हमें लड़ना है। हमें ऑटिज्म खत्म करना है, ADHD खत्म करना है। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंट्री के युवा को बहुत स्ट्रांग बनाएं, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि हमारा युवा आज एक्टिव है, नो डाउट, बट वो कितना प्रोडक्टिव है। एक्टिव होना इज नॉट सफिशिएंट। उसके प्रोडक्टिव होने के लिए और कंट्री के लिए असेट बनने के लिए उसका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स एंड काउंसलर्स। मैं हमारे व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जैसे ही एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक आता है डिप्रेशन में बहुत बार, तो प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइफ सेविंग नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें कॉल कीजिए, वो आपको असिस्ट करेंगे। डोंट हर्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट वर्थ इट ऑल्सो। एंड अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हमने कुछ नॉलेजफुल चीज़ें शेयर की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं फॉर काउंसलिंग, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों करता हूँ। अगर आप नागपुर में हैं तो मैं ऑफलाइन काउंसलिंग कर सकता हूँ, और अगर आप नागपुर में नहीं हैं तो मैं ऑनलाइन सेशंस लेता हूँ। सो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे सारे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। थैंक यू। एंड येस, आई वुड लाइक टू थैंक यू for being here today in the part of my video, and hope so in future I will come with more enthusiasm and with much better topics. Thank you so much for watching. Thank you. Bye.